Two and one, we switch on our videos. I can see a lot of you today, but I cannot see a lot of you today. I can see a lot of you today in this session, but I cannot see a lot of you today. Let's get cracking, guys. Very good evening to all of you. And so we last met. We last had this kind of we meet quite a few we on a lot of occasions, but when we had this session, last session, we had it on, if I remember it correctly, we had it on 29th of January. So it has been around 7 to 8 days. We had this session. So today we'll stay with no story time today because मुझे लगता है we might have to extend this session. So what we are going to discuss today is something very powerful. मेहनत कर ली, मेहनत चल रही है, हार्ड वर्क कर लिया, स्मार्ट वर्क के बारे में भी हम कुछ ना कुछ जानते हैं. बट टुडे आई टीच यू समथिंग मैजिकल. We would go through 20 steps, 20, 21 approximately, which will go one by one. I'll share my screen. And those 20, 21 steps, when you follow them correctly in any order, will make a massive difference in your score. And when I say massive, it's a game changer. The only thing you need to understand is that you might not have to make notes of it. थोड़ा थोड़ा लिख लेना. By the end of the session, I'll share the PDF in your groups along with the recording. To chalo, my team will send tomorrow. So are you guys actively sitting? Are you guys in right positions, guys? Are you guys in the right positions? Perfect. I would still request. I still can't see a few of you जिन्होंने चोरी से चुपके से एक बार वीडियो ऑन करके गायब हो गए हैं. प्लीज कीप योर वीडियोज ऑन फॉर अ हाई इम्पैक्ट, बिकॉज मुझे एक्सप्रेशन से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं. नाउ नाउ व्हेन आई से, सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन. आई शेयर इट नाउ. मुझे बताना. गिव मी अ मिनट. कैन यू guys, can you see my screen? Rudra, can you see Genesis Mantras conquer your 10th board with zero regrets? Can you see that? All of you can see that, guys? Awesome, guys. So let's start now without wasting any further time. So master these game-changing stats. So I'm straight away moving to, I'm skipping the bull. I'm skipping the crap. I'm straight away moving to the first point. No mock test or sample papers beyond a certain date. I want you to pay attention to this. So एक ऐसा टाइम आएगा probably 3 दिन पहले from your board exam. So which is, for example, if you're talking about the board exams beginning from 15th, and 15th for CBSE guys, and ICSE begins from 18th. Now जिस एग्ज़ाम से probably 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, and कुछ एग्ज़ाम में छुट्टियां भी बहुत हैं, you would refrain yourself from solving the sample paper or a mock test probably 2 3 days before that exam, 2 days at least, because you know what happens is, stop reading side by side, guys. It's my humble request. आपको मैं दे दूंगा ये. Everybody of you will get it by the end of tonight. सिर्फ पॉइंट की हेडिंग सुन के मेरे पे फोकस करो, नहीं तो मैं स्क्रीन हटा दूंगा. अंडरस्टैंड दिस. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम, तो उसमें हमें डाउट्स आते हैं. हमें ऐसा लगता है वो डिफिकल्ट है, हमसे 3 4 क्वेश्चन नहीं होते. सो व्हेन वी गो इनटू दैट काइंड ऑफ अ जोन, when we go into that kind of zone, we start doubting our preparation. In totality, we start doubting our preparation. एक दो क्वेश्चन नहीं. समवन लाइक मेरे जैसा बच्चा फॉर एग्जांपल हुज एमिंग 85% या 90%. ना जब वो एक सैम्पल पेपर करेगा, उसके मान लो 3 4 क्वेश्चन बैक टू बैक नहीं हुए, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, आई स्टार्ट डाउटिंग माई 95 97% प्रिपरेशन जो मेरी टिप्स पे है. और मैं इस नेगेटिव बिलीफ से पेपर में जाऊंगा 2 दिन बाद. लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट रीड द पॉइंट्स. आप सब आपके साथ ही शेयर करने हैं मैंने आज. तो मैं एक नेगेटिव बिलीफ के साथ पेपर में जाऊंगा. वो नेगेटिव बिलीफ क्या होगा? वो नेगेटिव बिलीफ ये होगा मेरे बच्चे
कि यार कहीं ना कहीं मैं जब पेपर दे रहा हूँ मैं, कि मेरे को अभी मेरी पूरी तैयारी नहीं है, मेरे से 2 दिन पहले मैंने एक पेपर दिया, एक दिन पहले मैंने मॉक दिया, उसमें मेरा बैंड बज गया या मेरे उतने नंबर नहीं आए। सो एक पॉइंट के बाद आप कोई मॉक टेस्ट नहीं दोगे, एक पॉइंट के बाद आप कोई सैम्पल पेपर को मतलब गो थ्रू नहीं करोगे, मे बी 2 days जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम यू कैन अप्लाई द स्ट्रैटेजी। am I clear? And I've given you the reason for it also. I've given you the absolute clear reason for it कि ऐसा क्यों नहीं करना है. Next is stay happy and practice gratitude. I think these points are very very generic, but मैंने बहुत सोच समझ के बनाए हैं. So when I say, the you see your frame of mind is a very very important index. मैंने अपनी लाइफ में किसी ऐसे बच्चे को जीतते हुए नहीं देखा लाइफ में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने अपनी लाइफ में किसी बच्चे को ज़िंदगी में जीतते हुए नहीं देखा जो बेसिकली नेगेटिव ह्यूमन बींग है. दिस इज़ अ वेरी डीप थिंग. आप जिंदगी में तभी जीतोगे जब एज अ ह्यूमन बींग आप पॉजिटिव ह्यूमन बींग हो. यू माइट हैव अ शेयर ऑफ टाइम व्हेन यू आर गोइंग लो इन लाइफ, व्हेन यू हैव अ टफ टाइम, यू हैव अ टफ एग्जाम, 5 में से एक एग्जाम खराब हो सकता है, बट ओवरऑल यू विल विन इफ यू आर अ पॉजिटिव ह्यूमन बींग. So you got to practice gratitude. When I say gratitude, I think we all understand what is gratitude. Gratitude is basically spending 5-10 minutes every single day in a day, in an entire day, spending 5-10 minutes thanking the whatever higher power, if you believe in it, for whatever you guys have. And I'm sure if you look around, and there are a lot of things for which we can be thankful for in life. It could be an amazing support family in terms of your family or whatever xyz reason, it could be anything. But I'm sure कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए we can be absolutely crazily thankful for to the higher power. We generally tend to take these things for granted, है ना. हम बहुत चीज़ों को ग्रांटेड लेना शुरू कर लेते हैं बिकॉज वी आर अंडर सो मच बर्डन ऑफ गिविंग द बोर्ड एग्जाम, सो मच प्रेशर, सो मच पीपल, सो मच नॉइस अराउंड अस, people saying us this and all that stuff keeps on happening. But remember, always take at least 5-7 minutes per day to practice gratitude, preferably before you end your day. So when you before you end up wind up your things रात को 11 12 1 2 बजे, just 5 minutes of gratitude will do wonders to your next day. You can start doing it from today and let me know, probably in my personal DMs you can let me know कि उसका क्या benefit हो. Third is a very crazy point and I'm going to spend a lot of time on it. जब हम एग्ज़ाम दे रहे होगे, अब imagine you are sitting in the board exam. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने थॉट्स को मॉनिटर नहीं करते, हम अपने थॉट्स को वाइल्ड रन करने देते हैं. वो थॉट ये कहता है कि मैं जब एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हेन आई एम डूइंग अ पर्टिकुलर 7th क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, आई वांट यू टू, दिस इज द क्रेजियस्ट पॉइंट, वन ऑफ द क्रेजियस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन. मैं 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ, बट मेरा कहीं ना कहीं ध्यान 5th क्वेश्चन पे अभी भी चल रहा है जो मैं करके आया हूँ, और मेरे दिमाग में ही चल रहा है क्या मैंने वो ठीक किया, वो गलत ना हो जाए. और ऑन द कॉन्ट्री ऐसा भी है, मैं 7th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मेरी निगाह 8th पे भी पड़ गई है क्योंकि एक ही शीट पे है क्वेश्चन पेपर के, तो मेरे दिमाग में 7th के साथ साथ 8th भी थॉट में चलने लग गया. एंड ये हर बच्चे के साथ होता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी. व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आई एम नॉट एबल टू गिव 100% एफर्ट टू माई 7th क्वेश्चन, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं, जब मेरा ध्यान कहाँ पे है, जब मेरा ध्यान मेरे बच्चे 8th पे भी है, 7th पे भी है और 5th पे या 6th पे भी है, तो कहीं ना कहीं आई एम नॉट इन द प्रेजेंट, आई एम जगलिंग बिटवीन, आई एम इन ऑसिलेशन, 8th, 6th, 7th, assuming 7th is the mean position. But 7th should not be the mean position, 7th should be the only position. Because if I'm focusing upon 7th question, I should be forgetting what happened with the 5th question or 6th question. That will take care of itself during the revision time. And when I've moved to the 7th question, the 8th question will be taken care of it when I'm on the 8th question. 8th question will not be taken care of when I'm on the 9th question or vice versa. Craziness. One bloody question at a time. मेरी केयरलेस मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी, जिसको मैं ब्लंडर मिस्टेक्स बोलता हूँ आप लोगों के साथ. मेरे गैप्स खत्म हो जाएंगे, मुझे रिवीजन कम करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज मेरी ब्लंडर मिस्टेक्स होती ही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन स्पैन है. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? वन क्वेश्चन एट अ टाइम. नाउ व्हाट डू यू डू? ये शायद पॉइंट रिपीट हो जाएगा गलती से. व्हाट डू यू डू व्हेन यू स्टार्ट योर पेपर, व्हेन यू गेट द आंसर शीट? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आप सब रफ मार्जिन ड्रॉ करते हो, वहाँ पे छोटा सा हर शीट पे लिख लेना
वन क्यू एट अ टाइम, इतना छोटा हो कि आपको दिख रहा हो, बस इतना, वन क्वेश्चन एट अ टाइम. सो वेन एवर यू गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द एग्जाम, डिस्ट्रैक्शंस डू हैपन. व्हेन आई से डिस्ट्रैक्शन, अब एग्जाम में डिस्ट्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपको मेरा ख्याल आ जाएगा, या आपको पेरेंट्स का ख्याल आ जाएगा, या आपको बुढ़वी से, या आपको अपने बेस्ट फ्रेंड का ख्याल आ जाएगा. एग्जाम में डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये भी डिस्ट्रैक्शन है कि अगर मैं सेवन्थ क्वेश्चन करते करते एट्थ के बारे में सोच रहा हूँ, या एट्थ करते करते मैं पेपर के एंड के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन है. वन क्वेश्चन एट अ टाइम, as simple as that. Fourth point is don't go with any preconceived notions. So which means what? When I say preconceived notions, preconceived notion का मतलब है एक सेट, एक BS होता है बिलीफ सिस्टम. सो फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को लगता है यार मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, तो वो मैथ्स के पेपर में इस बिलीफ सिस्टम से जाएगी या जाएगा, यार मेरे ये पेपर मेरा सबसे टफ पेपर है, ये हो जाए. पेरेंट्स भी बेचारे माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं, तेरा मैथ्स हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं है. किसी को हिस्ट्री में बॉर्डर लगता है, पेरेंट्स भी घर पे सेम रोला मचाते हैं, बच्चा भी, हिस्ट्री सर मेरी निकल जाए, SST का पेपर हो जाए, उसके बाद मुझे किसी पेपर में स्ट्रेस नहीं है. जो बेचारा साइंस में स्ट्रगल करता है, मे बी बायो में या मे बी फिजिक्स में, फिजिक्स में तो चलो तुम क्या ही स्ट्रगल करोगे मेरे होते हो. तो जो फॉर 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 एग्जाम्पल किसी भी सब्जेक्ट में, और आप एक प्री कंसीव नोशन के साथ जा रहे हो कि यार मेरा ये सब्जेक्ट सबसे खतरनाक है, एंड ट्रस्ट मी उस पेपर में यू वुड एंड अप मेकिंग मोर मिस्टेक्स देन इन अ पेपर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट. आई एम नॉट सेइंग ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई एम सेइंग इन विच यू आर मोर कॉन्फिडेंट. बिकॉज हम जब प्री कंसीव नोशन के साथ जाते हैं, मैं पेपर को पेपर की तरह नहीं देखता. मैं इसका एग्जांपल क्रिकेट की कंटेक्स्ट में समझाता हूँ, जिसमें 11 ट्वेल्थ के बच्चों को समझाता हूँ जो जेई नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं. इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है. हम जब यार मैं इनको ये बोलता हूँ कि जैसे एक टाइम पे जब तुम एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हो ना, तो इसको ऐसे देखना है कि अगर एक बैट्समैन है बहुत अच्छा, तो उसको ये नहीं देखना बॉलर कौन बॉलिंग कर रहा है, उसको ये देखना है कि जो बॉल आई है उस पे वो सिक्स मारे, फोर मारे, टू मारे, सिंगल ले, डिफेंस करे कि लीव कर दे. अब अगर इसको एक और सिंपल भाषा में समझाता हूँ. अगर मान लो हम कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है और सामने बहुत अच्छा बॉलर है, और अगर बहुत अच्छा बैट्समैन ये सोच के समझे कि ये बहुत अच्छा बॉलर है, इसको किसी भी बॉल पे मैं चौका नहीं मारूंगा, तो जो वो लूज बॉल भी फेंकता है बॉलर, उसको भी इस माइंडसेट से वो जब डिफेंस करेगा, तो वो ही हैज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 4 और 6 रन्स. एंड सिमिलरली अगर कोई बहुत वीक बॉलर सामने से बॉलिंग कर रहा है, उसकी एक अच्छी बॉल भी पड़े, और मैं ये सोच के बैटिंग कर रहा हूँ कि इसको तो मैं हर बॉल पे छक्का मारूंगा, तो मैं डेफिनेटली एक बॉल पे जो उसने अच्छी कर दी गलती से, उस पे आउट हो जाऊंगा. दैट्स कॉल्ड प्री कंसीव्ड नोशंस. आपने पेपर को, रेपुटेशन, पेपर की सब्जेक्ट की रेपुटेशन पे फोकस नहीं करना, आपने हर क्वेश्चन की रेपुटेशन पे फोकस करना है. ये क्वेश्चन कैसा आया है, मेरी तैयारी कैसी है. हो सकता है आपने ज़िंदगी भर मैथ्स में स्ट्रगल किया हो, किसी ने, हो सकता है आपने पूरा साल टेंथ में केमिस्ट्री में स्ट्रगल किया हो. मेरा इशारा जिसकी तरफ है वो समझ जाएगा. बट ऐसा भी हो सकता है वो स्ट्रगल उस दिन आप ख़त्म कर दो. वो तभी होगा अगर आप पहले मेंटली यहाँ से नोशन के साथ नहीं बैठ रहे कि हाई केमिस्ट्री, हाई केमिस्ट्री, हाई मैथ्स, हाई फिजिक्स, हाई इंग्लिश, मैंने तो ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, ये साइंस से मेरा आज पीछा छूटने वाला है, साइंस तो होती टफ है तभी मैं ह्यूमैनिटीज़ लेने का प्लान कर रही हूँ, या मैथ्स तो होता ही कहाँ, शुक्र है मैथ्स खत्म होगा. खत्म जब तक पेपर नहीं होता, डोंट हैव एनी प्री कंसीव नोशंस. आई होप माई पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑसम. फिफ्थ इज रिमेंबर योर कंट्रोल एक्शंस नॉट आउटकम्स. मैं बचपन से एक ही चीज़ आपको सिखाता हूँ, जिंदगी में दो चीज़ें होती हैं. पहली वो चीज़ें जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, मेक सेंस, यस. दूसरी वो चीज़ें जो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इंसान का सबसे बड़ा आई वुड से क्या है, टैलेंट पता है क्या है? इंसान वो कामयाब है जो इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर सके. मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ शेयर, मैं खुद पढ़ूंगा पॉइंट्स. आई हैव द पॉइंट्स विद मी ऑन माई लैपटॉप, माई फोन, ताकि तुम मेरे पे फोकस कर सको. इंसान का, मैं रिपीट करता हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थिंग्स ही कैन कंट्रोल एंड एंड ही कैन नॉट कंट्रोल. हम किस पे वरी करते हैं? पेपर कैसा आएगा,
इस आज मुझे एक बच्चा, आई डोंट रिमेम्बर, समवन वाज टेलिंग मी, सर इस बार ना हमारे बोर्ड में पेपर उस वाले एग्जाम वो वहां से बन के आ रहा है। तो भाई इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? पेपर कहीं से भी बन के आए। सर वहाँ ना जब भी पेपर बनता है ना वो डिफिकल्ट, ट्वेल्थ का बच्चा बोल रहा था, ट्वेल्थ का। सर वहाँ ना जब भी पेपर बनता है डिफिकल्ट बनता है। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू यू? इट्स गोइंग टू बी सेम फॉर ऑल ऑफ यू। ऐसा तो नहीं है ना कि प्रांजल को पेपर अलग दिखेगा बोर्ड का, फिजिक्स का आईसीएससी का, चाहत को अलग दिखेगा, पुष्टि को अलग दिखेगा, सबके लिए सेम पेपर आएगा ना? ऐसा तो नहीं है ना। एंड वी आर वरिंग अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल। मैं सर अब मेरे आगे कौन बैठेगा? सर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा? टीचर जो आएगा क्या वहाँ चीटिंग होती है? सीबीएसई वाले बड़े क्रेजी होते हैं बेचारे बच्चे। सर जहाँ मेरा सेंटर बन रहा है वहाँ स्ट्रिक्टनेस है कि लीनियंसी है? अरे भाई वो तेरे हाथ में थोड़ी है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना यार। वो सर सेंटर कैसा है सर वो? यू कांट कंट्रोल। सर का सर हमारा भी पेपर सर स्कूल में हो जाता ना सर, आईसीएससी वाले कितने लकी हैं, सीबीएसई वाले से बोलते हैं, सर इनका देखो कितना लग गया, अब इनका पेपर स्कूल में ही होता है। वी आर वरिंग अबाउट थिंग्स विच आर ब्लडी नॉट इन आर कंट्रोल। एंड इन द प्रोसेस बेटा हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में है अच्छा सोचना, मेरे कंट्रोल में है अच्छी मेहनत करना, मेरे कंट्रोल में है एक सेल्फ बिलीफ होना कि अगर मैं तहे दिल से पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरे मेरे कंट्रोल में है इस आदमी के हर सेशन को लगाना। मेरे कंट्रोल में ये नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट मेरे कंट्रोल में ये बिल्कुल नहीं है कि इस बार बोर्ड का पेपर टफ आएंगे आसान आएंगे, 90 पे क्या नंबर आएंगे, ऑल दैट क्रैप, स्टॉप फोकसिंग ऑन इट। Am I clear? So focus on the C that is controllable, not on the NC which is not controllable. And I repeat, the craziest successful people focus upon the things they can control, not on the things they do not control. ड्यूरिंग द एग्जाम, नेक्स्ट पॉइंट इज पेप टॉक ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम के बीच में 3 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है, अपने आप से ना कुछ आधे घंटे के बाद टाइमर्स लगा के ना अपने आप थोड़ी सी बात करते रहो। पेप टॉक, आई एम डूइंग इट, आई एम डूइंग इट वेल, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। जब मैंने एक पॉइंट पहले भी था ना, मोनिटर योर थॉट्स, वहाँ पे मोनिटर योर थॉट्स का ये भी मतलब हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं एक पेपर दे रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक पेपर दे रहा हूँ और पेपर देते 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 क्या हुआ कि मुझे आधे घंटे बाद मैंने थॉट को मोनिटर किया कि यार मेरा पेपर क्या कैसा जा रहा है मेरा पेपर। तो मैंने रियलाइज़ किया आधे घंटे में मैंने कुछ भी नहीं अचीव किया। इट हैज़ बीन अ पुअर हाफ एन आवर फॉर मी। तो इफ़ आई एम नॉट मोनिटरिंग माई थॉट तो मुझे रियलाइज़ होगा 2 घंटे के बाद, तो मेरा पेपर पूरा ख़राब हो गया। अगर मैं अपने थॉट्स को रेगुलर मोनिटर कर रहा हूँ कि मैं फोकस प्रेजेंट पे कर रहा हूँ, मैं कोई नेगेटिव कि अगर मैं ये तो नहीं सोच रहा अगर ये मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, मैं पेरेंट्स को कैसे फेस करूँगा, मैं जेनेसिस में कैसे शक्ल दिखाऊंगा, मैं जब मई में रिजल्ट आएगा तो मैं अपने चाची को कैसे बताऊंगा, जो चाची मुझे हर हमेशा हर महीने फ़ोन करके पूछती है पेपर की तैयारी कैसे चल रही है। सो 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 वहाँ पे यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये अपने थॉट्स को मॉनिटर नहीं करोगे तो कुछ पेपर एक आधा खराब हो सकता है। सो यू गॉट टू मॉनिटर योर थॉट्स साइड बाय साइड। एंड फॉर व्हेन यू गेटिंग ऑफ ट्रैक इन द एग्जाम, इंश्योर दैट यू गिविंग अ पेप टॉक टू योर ओन सेल्फ थ्रू आउट द एग्जाम। आई एम डूइंग वेल, मेरे से हो रहा है, मैं बहुत सही कर रही हूँ। मे बी माई लास्ट 10 मिनट्स वॉज नॉट गुड, मेरे से 2 क्वेश्चन नहीं निकले, कोई बात नहीं, आई बाउंस बैक। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिटिल 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 फनी बट इंपॉर्टेंट। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, आप ड्यूरिंग द एग्जाम अगर कोई क्वेश्चन पर अड़ गए हो, मैथ्स में, फिजिक्स में, या किसी लंबा क्वेश्चन जो लिखने वाला होता है, द क्वेश्चन इज नॉट योर हस्बैंड और अ वाइफ, मूव ऑन, रिमेंबर दैट। डिफिकल्ट टू ऑब्जॉर्व बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट योर हस्बैंड और अ वाइफ जिसके साथ आप अड़ गए हो तो अड़े रहो कि निभानी ही निभानी है। ऐसा कुछ नहीं है, मूव ऑन। नहीं हो रहा, एफर्ट डाला, दिमाग लगाया, नहीं हो रहा, डोंट स्टिक विद इट, डोंट स्पॉइल योर एंटायर पेपर, डोंट, मूव ऑन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक सेंस? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम कभी कभी क्या होता है, हम अपना अपनी ना ईगो लगा लेते हैं। मैं बताता हूँ ईगो कहाँ आती है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स का पेपर है और समवन इज वेरी गुड इन मैथ्स, को ट्रिग्नोमेट्री इसका फेवरेट चैप्टर है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये होता है बच्चों के साथ, ट्रिग्नोमेट्री फेवरेट है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अड़ गया, मैं तो ईगो वाला बंदा हूँ, मेरा कैसे अड़ गया क्वेश्चन, मेरा तो मैथ स्ट्रॉन्ग है, मेरा तो जिंदगी में नंबर नहीं कटा, मैं तो हर मैथ्स के मॉक टेस्ट में 80 में से 80 लाता हूँ। दिस इज फॉर किड्स वो वेरी गुड, लिसन टू मी। अब आप ईगो डालोगे,
मैं तो निकाल के रहूंगा। 15 मिनट उस क्वेश्चन में वेस्ट कर दिए। हो गया क्वेश्चन, हो गया, ईगो देखा। उस प्रोसेस में लास्ट में 2 क्वेश्चन छूट गए। 12 नंबर का पेपर 10 नंबर का पेपर छूट गया। 3 नंबर की ईगो के लिए, 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए 10 नंबर के पेपर पे सैक्रिफाइस कर दिया। कौन से जमाने की सेंसिबिलिटी है भाई? किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? अपने आप को। नंबर जब ओवरऑल कम आएंगे तो वैसी कॉन्फिडेंस की शार्टनेस तो तुम्हारे सामने होने वाली है। This generally happens with long questions in mathematics, physics के numericals, maybe chemistry numericals. This generally happens with these subjects. Bio में नहीं कभी होगा, because bio में either you know it or you don't know it. ईगो नहीं लगानी। बी लेस ईगो, लेस ईगो। अटैचमेंट नहीं चाहिए क्वेश्चन के साथ। बेस्ट करूंगा, नहीं हुआ बाद में आके फ्रेश होके फिर से रीस्ट्रेटजाइज करूंगा। पहले वो करूंगा जो सारा पेपर आता है। नेक्स्ट इज, अगर बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन, वर्स्ट केस सिनेरियो, जनरली होता नहीं ऐसा, बट वर्स्ट केस सिनेरियो 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक नहीं निकले। रीडिंग रीडिंग टाइम में तुमने पेपर पढ़ रहे हो और तुम्हारे को लगा यार ये तो बहुत खतरनाक पेपर आ गया है, हाय पैनिक मत करना बेबी। पैनिक मत करना। पेपर तब खत्म होता है जब 3 घंटे या 2 घंटे खत्म होते हैं। पेपर तब खत्म नहीं होता जब रीडिंग टाइम खत्म होता है। लास्ट मिनट तक पेपर से फाइट करनी है। कामली फाइट करनी है, ठंडे दिमाग से फाइट करनी है। वर्स्ट केस में 2 क्वेश्चन नहीं भी हुए, वर्स्ट केस क्या होगा, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन नहीं आते, मतलब टोटल 5 नंबर कट भी रहे हैं। 80 में से 75 में से यू, इफ यू डू वेल, ऑल ऑफ यू कैन स्कोर 75 आउट ऑफ 75 इन दैट 75। बट अगर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बैक, 5 एमसीक्यू नहीं आते बैक टू बैक, क्लिक नहीं कर रही, तो 5 ही नंबर है ना यार। है तो 5 ही नंबर। उस 5 नंबर के चक्रों में 75 मार्क्स का पेपर बैंड बजा लेते हैं कई बच्चे। 60 में ले आएंगे, 50 में ले आएंगे। क्यों? और घर आके सारा पेपर आता होगा सिर्फ वो 5 क्वेश्चन को छोड़ के। नेवर डू दैट। वर्स्ट केस हो गया, नहीं आते बैक टू बैक, ठंडे दिमाग से जब वापस पूरा पेपर कर लोगे ना काफ़ी हद तक, तो ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार काफ़ी कर लिया मैंने पेपर। 70-80 नंबर, 70, 72, 64 जितनी भी हम जो भी आपका अपने लिए टारगेट है कर लिया है। अब इन 5 को फ्रेश माइंड से अप्रोच करता हूँ, या 3 को, जितने भी क्वेश्चन हैं। रोना नहीं है पेपर में, मतलब रोना का मतलब आंसू की बात नहीं हो रही, रोना मतलब दिल नहीं रोना चाहिए तुम्हारा। ये कैसे हो गया? मैं ब्लैक आउट हो जाते हैं बच्चे बेचारे, स्पेशली जिनको जो मैथ से फोबिक होते हैं, वो मैथ में ब्लैक आउट हो जाते हैं। अरे भाई कुछ नहीं है, पेपर है, कुछ नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट इज बोर्ड एग्जाम। दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। द बोर्ड एग्जाम्स को इतना बड़ा सवाल मत बताओ जीने मरने का। बहुत। कितने साल जियोगे तुम तन्वी? 70 साल, मान लो तन्वी 70 साल जीती है। मैं चाहूँगा और जिए, इसने बहुत सारे गोल्ड मेडल लाने इंडिया के लिए। ठीक है, 70 साल जीती है। 70 साल की ज़िंदगी में होते हैं 12 × 7, 840 मंथ्स। मैं ठीक कर रहा हूँ ना मैथ्स? है ना? ठीक है। 840 मंथ्स में ये जो ये 1 महीने के बोर्ड एग्जाम है, थोड़े ऊपर नीचे हो भी गए, लॉन्ग टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम है, लाइफ मत बनाओ एग्जाम को, एग्जाम की तरह ट्रीट करो। जब हम किसी चीज़ को जीने मरने का, मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट ना होते मैं तुम्हारे साथ रात रात बैठ के काम ना कर रहा होता इस टाइम पे। खुद सोचो, मेरे लिए भी तुम्हारी सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ड्रीम मेरा ड्रीम है, तुम्हारा ड्रीम जेनेसिस का ड्रीम है। बट ऐसे नहीं है कि तुम मुझे फ़ोन करो, सर मेरे नंबर कट आ रहा है, मैं बोलूँगा तेरा दिमाग खराब है, नंबर कहाँ कटवा लिया? अरे भाई कोई चक्कर नहीं है, बेस्ट देना हमारे हाथ में है, कंट्रोल वो है। नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ और होगा, 5% कम आ जाएंगे, 90 के 85 आ जाएंगे, 85 के 80 आ जाएंगे। कौन सा मम्मी पापा प्यार कम करेंगे? कर भी लेंगे तो मैं तो सेमी प्यार करूंगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम बी वेरी ऑनेस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में। 5 दिन का मुंह बनेगा घर वालों का, तेरे को बोला था ना पढ़ ले, पूरा साल तूने वेस्ट किया। अभी कसर मत छोड़ो। मोबाइल नहीं चलाना, मोबाइल गेम्स बंद कर दो, फोकस करो, फालतू की चिट चैटिंग बंद करो। अभी जो हाथ में है उस पर पूरा फोकस करो। बाकी देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे यार मिलके।
मेक सेंस? एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह देना है। 840 महीने की ज़िंदगी में एक महीना ऊपर नीचे से ज़िंदगी खराब नहीं होगी बेटा। मेरी तो खुद ज़िंदगी में कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम ही क्रैक नहीं हुआ। किलो किलो के हिसाब से अब जेनेसिस के बच्चे क्रैक कर जाते हैं, बट मेरा नहीं हुआ खुद का यार, क्या करें। अच्छा हुआ नहीं हुआ, मैं सोचता हूँ किसी दिन और दिन बताऊंगा अच्छा हुआ क्यों नहीं हुआ। अच्छा होता तो कहीं नौकरी नौकरी कर रहा होता, ये थोड़ी कर रहा होता। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट लेट पीपल अराउंड यू स्ट्रेस यू आउट। रिश्तेदार से दूरी बना के रखेंगे थोड़े दिन के लिए। पड़ोसी जिनको पता है कि आप 10th के बोर्ड्स में अपियर होने वाले हैं, उनसे आप दूरी बना के रखिए। कृपया घर से बाहर निकलिए और हेडफोन्स पहन के निकलिए। हेडफोन्स पहन के अगर आप नहीं भी गाने चल रहे, उनको ये लगना चाहिए गाने चल रहे हैं, कि उनकी कोई बकवास आपके कानों में नहीं जा रही। तो कल हर बच्चा 100 रुपये वाले हेडफोन खरीदेगा एक। घर से बाहर निकले, बेटा बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है, सुना ही नहीं। घर वाले पूछेंगे तो जवाब नहीं देते उनकी बात का। मैं गाने सुन रहा था, मैं हनुमान चालीसा सुन रहा था। कोई कुछ नहीं कहेगा हनुमान चालीसा के नाम पे, वैसे ही कोई कुछ नहीं कहेगा। समझ रहे हो? क्लियर है? कोई भी फ़ोन तुम्हें करके कहता है हाँ बेटा ऑल द बेस्ट बेटा, तेरी टेंशन हो रही थी बेटा मुझे, मैं इंटेंट पे डाउट नहीं कर रहा। मैं किसी के रिश्तेदार के इंटेंट पे डाउट नहीं कर रहा। तुम अपने रिश्तेदारों को तुम मेरे से बेटर जानते हो। इंटेंट से अगर तुम्हारा पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है तो इट्स नॉट वर्थ इट। नहीं सुनना। नेगेटिविटी नहीं चाहिए। डर नहीं चाहिए तेरा क्या होगा बोर्ड एग्जाम में। ऐसी बकवास नहीं सुननी मुझे। 2 3 पेरेंट, में नाम नहीं रहा, पेरेंट मुझसे बात करते हैं सर इसका कुछ बनेगा। मैं टूट पड़ता हूँ उनके ऊपर। क्यों नहीं बनेगा सर? आप, मैं तो इतना भी पूछ लेता हूँ, आपका बन गया था ना, तो इसका भी बन जाएगा यार, क्यों नहीं बनेगा? एंड ट्रस्ट मी, एंड आई एम वेरी रूड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई कोई भी पेरेंट मुझे या कॉल करके ये बोलता है कि इसका क्या बनेगा, सर आपको लगता है इसका बन जाएगा, भाई क्यों नहीं बनेगा? आपका बन गया ना, आपका भी तो बना है बिना कोचिंग बिना मेंटरिंग के उस टाइम पे, तो इसका भी बन जाएगा, इससे बेटर ही बनेगा यार। मेक सेंस? रिश्तेदारों से, फरिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, बड़े भाइयों बहनों से, कजन से, अगर नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ज़िंदगी में, उनसे दूरी बना के रखेंगे अगले एक महीना। अगर पॉजिटिव लोग हैं, पेप टॉक करते हैं, बोलते हैं तुम यू कैन डू इट, उनके साथ नज़दीकी बना के रखो। ओके दिस इज, अपने टेस्ट सेंटर पे टाइम पे पहुंचना, आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल, ये मैं पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा। ओके स्लीप साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट बिफोर। आपको जिस टाइम पे सोना है वो फिक्स हो जाना चाहिए। जिस टाइम पे उठना है वो फिक्स हो जाना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था ये। जिस टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, उस टाइम पे रोज़ बैठ के आपने सेल्फ स्टडी करनी है सुबह। ये नॉन नेगोशिएबल है। अगर कोई बच्चा तुम में से, मेरा स्टूडेंट होने के बावजूद, जेनेसिस का स्टूडेंट होने के बावजूद, सुबह 10 से 1 के बीच में सो रहा है, या एक्टिव नहीं है, या उस टाइम पे मोबाइल चला रहा है, स्क्रीन चला रहा है, उसका बाई गॉड उसको मैं श्राप दे दूंगा। एंड आई मीन इट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तुम सब 10 से 1 अपने, या तो जेनेसिस पे आके सेल्फ स्टडी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, या अपने घर पे टेबल चेयर पे मोबाइल बंद रख के वॉच अलार्म क्लॉक लगा के बिल्कुल 10 से 1 पढ़ा करोगे। 1 बजे के, 2 बजे के बियॉन्ड कोई नहीं जागेगा। 1:30 बजे मैक्सिमम, 1:30, 1:30 to 7:30, 8:30 इज द टाइम यू शुड बी स्लीपिंग एट नाइट। 1:30 इज द लास्ट टाइम सेइंग। 1:30, 1:31 नहीं होना चाहिए रात को, सुबह मतलब एएम की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग शुड स्टार्ट फोकसिंग, शुड स्टार्ट एस्टैब्लिशिंग पीक कंसंट्रेशन। पीक कंसंट्रेशन ऐसे ड्यूरिंग 10 to 1। बोर्ड के टाइमिंग यही होते हैं ना। पीक कंसंट्रेट मतलब उस टाइम पे तुम्हारा साइकिल ऐसे बन जाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भगवान घुस गए। और पीक कंसंट्रेशन बनाने के लिए मैंने सिंपल है, मैंने पहले भी बताया था, स्टार्ट करने से 10 मिनट पहले सुडोकू सॉल्व करनी शुरू करके बैठा करो। 10 मिनट सुडोकू सॉल्व करी, सॉल्व हुई नहीं हुई, पजल सॉल्व कर ली, कोई अच्छा मेडिटेटिव सॉन्ग सुन लिया, बट अपने दिमाग को एक्टिव साइकिल में लाने के लिए सुडोकू इज़ अ वेरी वेरी गुड गेम। तो उसको सॉल्व करा, 10 मिनट लगाए उस पर, 15 मिनट, उस दिमाग के साइल तुम्हारे सेल्स चलने लग गए। सेल्स गेट एक्टिवेट एंड यू स्टार्ट मूविंग टू योर फर्स्ट साइकिल। आई हैव नो इश्यूज यू कमिंग टू जेनेसिस एंड डू सेल्फ स्टडी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट टाइम। आई हैव नो इश्यूज, यू डू इट एट होम, आई डोंट केयर। आपको 10 to 1 पीक साइकिल चाहिए मुझे। एक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से पहले घर वाले बेचारे कभी कभी दाल चीनी खिला के भेजते हैं सुबह, दही ऐसा कुछ नहीं खानी। मुझे ऑनेस्टली ऑन सीरियस नोट मजाक कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं, आप दाल चीनी खाओ,
या दही खाओ मिट्टी, आई हैव नो इश्यूज गाइस, मैं किसी के बिलीफ्स पे वो नहीं कर रहा। बट मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि जब वैसे मान लो मैं चाहत को मैं बोलूँ कि चाहत आज तेरे को मैं दही खिला के भेजूंगा, तो चाहत को क्या लगेगा, आज कुछ बड़ा दिन है, आज कुछ बड़ा डिफरेंट डे है। जब हम इस सोच से कहीं जाते हैं ना, दो चीज़ें होती हैं, या तो मैं उससे बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ और आई परफॉर्म वेल। बट कई बच्चों के साथ उल्टा हो जाता है कि वो ना बहुत प्रेशर ले लेते हैं इस बात का कि आज कोई डिफरेंट डे है, इट्स नॉट अ यूजुअल डे, समथिंग इज हैपनिंग। तो मैं ना ओवर कॉन्शियस होने लग जाता हूँ। तो जो मैं 8 इंटू 12 नॉर्मली 96 लिख देता हूँ ना, तो वो पेपर में ना मैं 12 इंटू 8 ना 96 करके देख लेता हूँ। 8 2 ज़ा 16 1, 8 1 ज़ा 8, 8 + 1 9, 96 हो गया। तो वो मैं अपनी ना, आई वुड से फ्री फॉल छोड़ देता हूँ, फ्रीली ना, जिसमें फ्लो कर रहा होता हूँ। प्रॉब्लम दाल चीनी में नहीं है, प्रॉब्लम उसके साथ जो तुम इमोशन कैरी करते हो ना, उसमें है। क्योंकि उस इमोशन से तुम ओवरबर्डन अगर फील करते हो, तो मतलब उनके पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स के लिए खा लेना, बट सोचना नॉर्मल डे है आज, पेरेंट्स के लिए तो बड़ा दिन है, क्योंकि उनका बच्चा जिन्होंने इतनी मेहनत से बड़ा किया है, आज वो जिंदगी के पहले बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है। इट्स फॉर देम, नॉट फॉर यू। तुम्हारे लिए ऐसा सोचो, यार जेनेसिस का मॉक टेस्ट है यार, हबशियों की तरह जाएंगे, बट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा तरीके से जाएंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे। मेक सेंस? क्लियर? ठीक है, दैट्स, आई एम नॉट अगेंस्ट दाल चीनी। कल पता लगे 2 दिन पेरेंट्स का फ़ोन आ जाए, सर ये दाल, ये चीनी नहीं खा रहा सुबह, ये दाल मना कर रहा है हमें, अभी हमारे सेंटिमेंट। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं इवेंचुअली फीस तो उन्होंने दी थी तुम्हारी, उनको नाराज़ करके कहाँ जाऊँगा मैं। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, टाइम पर क्वेश्चन इज क्रूशल। मैंने तुम्हें बता दिया बेटा कि क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट नहीं चाहिए। जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, मूव ऑन। लाइक यू विल मूव ऑन इन फ्यूचर विद लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। रिमेंबर, जब कॉलेज आएगा तो तुम यू विल लर्न हाउ टू मूव ऑन। ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर किसी क्वेश्चन पे बुरी तरह स्टक हो जाओ टफ क्वेश्चन के लिए, देयर इज अ रेस्क्यू स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई, रेस्क्यू स्ट्रैटेजी फॉर टफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, लग रहा है बैंड बज गया, बहुत टफ है, उसको भी पंगा नहीं लेना। उसको डबल डॉट, एक पेपर पे पेंसिल से डॉट बना दिया, छोटा सा डॉट बना दिया क्वेश्चन पेपर पे, विजिबल भी ना हो, तुम्हें विजिबल हो। उसके साथ बना दिया कि मार्क फॉर रिव्यू है, बेसिकली मार्क फॉर रिव्यू का मतलब इसको मैं बाद में आगे फोड़ूंगा। मूव ऑन। अगर पूरे पेपर में ऐसे 3 4 क्वेश्चन भी हो रहे हैं, पैनिक मत करना, यू विल गेट टाइम इन द एंड, लास्ट में 15 20 मिनट मिलेंगे, उनको उस टाइम पे आके रीअप्रोच करना। एमसीक्यूज में एट टाइम्स अगर बहुत टफ क्वेश्चन है, एलिमिनेशन टेक्निक कभी कभी हेल्प कर जाती है। एलिमिनेशन टेक्निक इज़ वेरी सिंपल, कि ऑप्शंस को यूज़ कर लो, कई जगह यूनिट से काम चल जाता है, कई जगह 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाती हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बोर्ड एग्जाम में, देन यू कैन टेक अ कैलकुलेटेड केस ऑल्सो। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर हैंड राइटिंग मैटर्स। आई थिंक मुझे ये लगता है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है स्टेज पे, मैंने बताया भी था। राइटिंग रफ वर्क भाई, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, मार्जिन ड्रॉ करके करा करो। लेफ्ट मार्जिन तुम्हारा नहीं है, बोर्ड एग्जाम वालों का है। तुम लेफ्ट मार्जिन को ही ऐसे यूज़ करते हो जैसे बाइक और तुम्हारे पापा की ज़मीन है। वो पापा ने नहीं खरीदी बेटा ज़मीन, पापा की ज़मीन बाद में मिलेगी तुम्हें। तुमने अगर अपनी ज़मीन बनानी है तो जो एक आंसर शीट होती है ना, उसमें मार्जिन ड्रॉ करो करो क्लियर पेंसिल से, उसके ऊपर लिखा करो रफ वर्क। मैंने कितनी आंसर, आज भी मैं देख रहा था कैजुअली, मैं ज़रकपुर गया हुआ था आज, वहाँ के बच्चों की शीटें देख रहा था, भैया लेफ्ट पे ही काम किया हुआ है और नंबर है 80 में से 74, बट इतनी बेसिक चीज़ नहीं पता। लेफ्ट इज, रिमेंबर दैट, लेफ्ट स्पेस बियॉन्ड, समझ गए ना, लेफ्ट मार्जिन इधर वाली, वो पापा की नहीं है, बिल्कुल भी उस पर तुम्हारा हक नहीं है। राइट पे मार्जिन ड्रॉ करके जो तुम बनाओगे वो तुम्हारा हक है। हमें क्लियर? ठीक है। मैं एक और मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, वी ज्वाइन इन नेक्स्ट 1 मिनट एग्जैक्टली, इन दैट मीटिंग लिंक विल कंटिन्यू देयर। एक और मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, उस पर ज्वाइन करना, उसी ग्रुप पे भेज रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास आता है हैंड राइटिंग मैटर्स इज ओके, मैंने तुम्हें बता दिया पापा की ज़मीन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है। आपका गोल्डन टाइम इज रीडिंग टाइम, आई रिपीट, आई थिंक रीडिंग टाइम पे मैंने एक बार पहले भी वीडियो बना के डाली थी। रीडिंग टाइम की यूटिलाइजेशन इज द गेम चेंजर। अपने आप को म्यूट पे रखेंगे सारे। रीडिंग टाइम में यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर नॉट पैनिकिंग। और एक और चीज़ मैं फिर से रिपीट करूँ, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कभी, रीडिंग टाइम में अपने दोस्तों की शक्ल नहीं देखनी है। वी ट्राई टू गॉज द लेवल ऑफ द एग्जाम बाय द एक्सप्रेशन ऑफ माई फ्रेंड। Khanak will look at, Prisha will look at Khanak and say, and Khanak if makes a very sad face, then Prisha will say, if Khanak does not know it, I also don't know it.
आई हैव ऑलरेडी, खनक ने, प्रेशर ने ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशन सेट कर लिया दिमाग में कि भैया खनक को कम आता होगा तो मुझे भी डेफिनेटली कम आता होगा। भैया ये कहाँ का इंसाफ है? जॉनथन विल इंश्योर दैट ही इज नॉट लुकिंग एट आरुष फ्रॉम द साइड कॉर्नर कि यार आरुष की शक्ल कैसे बनी है फिजिक्स का पेपर देख के। क्योंकि अगर आरुष को फिजिक्स डिफिकल्ट लग रही है तो भैया साहिल सर तो फेल हो गए हैं। तो अगर साहिल सर ही फेल हो गए हैं क्योंकि आरुष तो साहिल सर का फेवरेट है, तो भैया मेरा तो ये पेपर में बैंड बच गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐसा कुछ, हमने एक रीडिंग टाइम में, रीडिंग टाइम तो हमें ना एक गलतफहमी हो गई है मुझे लगता है। मुझे ना एक जेन्युइनली लगता है एक गलतफहमी फैल गई है। रीडिंग टाइम इज नॉट द फेस रीडिंग टाइम ऑफ द फ्रेंड्स। Reading time is an exam reading time. It has been given by the board authorities to read the question paper, not the facial expression of the people around you. है ना? मुझे लगता है गड़बड़ होगी ना, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? है ना? है ना तन्वी? आई थिंक बोर्ड एग्जाम पीपल शुड मेक इट अ क्लैरिफिकेशन इन द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ये रीडिंग टाइम कृपया ध्यान से सुनिए, ये रीडिंग टाइम दोस्तों के रीड फेस रीड करने के लिए नहीं है। ऊपर से ना कई बच्चे बड़ी फनी फनी शक्लें बनाते हैं, मैंने देखा रीडिंग टाइम में। पूरे क्लासरूम में अगर टॉपर ऐसे कर देना, पूरे, स्पेशली जो बच्चे इकट्ठे, जैसे जैसे जनरली कॉन्वेंट स्कूल्स में, आईसीएससी में इकट्ठे पूरा बैच स्कूल इकट्ठे बैठता है, आई थिंक। मान लो मतलब स्कूल के टॉपर ने ऐसे कर दिया, भाई मैं सर बहुत डिफिकल्ट पेपर, ऐसे कर दिया, पूरे रूम में सेट होगी वाइब कि भैया काम खराब है। बल्कि अगर मेरा तो एडवाइस है, अगर तुमने पैनिक फैलाना ना और अच्छे बच्चों, तुम ही जाके बोल देना सबको। ओहो हो, ये तो सारा मॉक टेस्ट कल जेनेसिस में हुआ था। तो आधे तो कंपटीशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेट्स, हम सबको हम फेयरली बीट करेंगे सबको, ऐसे अनएथिकल वे से बीट नहीं करेंगे। बट जस्ट फॉर फन यू कैन ऐसा कर सकते हो आप कि ये तो पेपर परसों ही साहिल सर ने जेनेसिस पे, हमने जेनेसिस पे करवाया था, तो सबको लगेगा बेटा, एवरीवन विल स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। बट ऑन अ सीरियस नोट, रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करना है पेपर के ऊपर स्ट्रैटेजाइज करने के लिए। पेपर का लेवल क्या है, अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। मैं कैसे रीडिंग टाइम के लिए सजेशन देता हूँ बच्चे को कि रीडिंग टाइम में आप क्या कर सकते हो, वो जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, उनको फिगर आउट कर लो। या ये दो क्वेश्चन मैंने पेपर में पहले पहले अटेम्प्ट में नहीं करना, लास्ट में करूँगा। और अगर आपको जैसे लेंदी पेपर है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ लेंदी पेपर में आपको हमेशा, मैं ऐसा, मेरी ये स्ट्रैटेजी गलत भी हो सकती है बट ये मेरी पर्सनल फ्रेंडली एडवाइस है, मैं लेंदी पेपर में हमेशा उल्टा पेपर सॉल्व करना बिलीव करता हूँ। बिकॉज लेंदी पेपर में उल्टा पेपर का लॉजिक सिंपल है कि अगर मैंने आज भी, मैं कल भी किसी को बता रहा था आई थिंक किसी बैच में, कि अगर मैं स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन छोड़ दूँ एमसीक्यू में, अगर मेरे वो हो जाए तो मेरे को टाइम बहुत लग जाएगा, है ना? और अगर वो लास्ट में मेरा उस चक्कर में मेरे एमसीक्यू की जगह सब्जेक्टिव छूट जाए जो चार चार पाँच पाँच नंबर के आते हैं, तो मेरे साथ बहुत खतरों की खिलाड़ी वाली चीज़ हो जाएगी। तो दैट इज़ रॉन्ग। सो आई वुड एडवाइस, अगेन दिस इज अ एडवाइस, नॉट अ वो वुड से, मेरा मतलब ये कोई कानून नहीं है। वॉट एवर सूट्स यू, यू कैन फॉलो दैट। बट अगर जिसका मैथ्स का पेपर छूट जाता है, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो किसी मॉक टेस्ट में या घर पे सैम्पल पेपर में, उल्टा शुरू करके देखो, मे बी फिजिक्स का, मे बी केमिस्ट्री का, जो भी तुम्हारा पेपर छूटता है। Next is very important. This is a lot of you are asking me this. This is a very important point that we have moved to the 19th point of the day. 19th point. Turning anxiety into an excitement. मैं ना बहुत सारे बच्चों को, दो यू आर वेरी यंग फॉर दिस, बट जो, जब मैं जैसे तुम लोगों को अगले साल बताऊंगा कुछ चीज़ें, कि कुछ चीज़ें ना, जैसे मैं बच्चों को एक, मैंने एक अपनी सेल्फ कोटेशन मैंने काफ़ी यूज़ भी करता हूँ, जो 11 12 में बहुत वैलिड होगी, तो हम सब, मैं तुम्हें बहुत, तुम्हारी दीवारों पे लिखवा दूंगा। लिसन टू मी व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ। If the excitement of winning in life is greater than the fear of failure, you will always win in life. Repeat कर रहा हूं। If the excitement of winning in life is greater than the fear of failure, you will always win in life. डर देखो सबको लगता है, एंग्जाइटी सबको होती है, हर बच्चे को हो रही है। जो 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 ट्राई सिटी रंग 1 लाएगा, 2 लाएगा, 3 लाएगा, हल्की बहुत ही उसको भी है। वॉट इफ मैं को नहीं कर पाया, एंग्जाइटी सबको है मेरे बच्चे, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन जिस बच्चे को, ध्यान सुनना बहुत प्यारी बात है, जो बच्चा उस एंजाइटी को डोमिनेट होने देता है, वो हार जाएगा। वो ना माउंटेन ड्यू की एक ऐड आती थी बहुत प्यारी, डर सबको लगता है,
गला सबका सूखता है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। वो जो लास्ट लाइन है ना बेटा, वो है जो मैंने आज इंग्लिश में बोला, डर के आगे जीत है। विच मीन्स डर मतलब फियर सबको है, बट वेन यू ओवरकम दैट देन ओनली यू विन। पेपर में नर्वसनेस होना तुम लोगों को अपने लिए है, मेरे को तुम लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है, ट्रस्ट मी है, क्योंकि इस बार मेहनत बहुत ज़्यादा ही कर ली है। मेरे खुद मैं आज, मैं कल ना अपनी टीम से कल बात कर रहा था, ऑल द टीचर्स एंड ऑल, है ना, कैजुअल डिस्कशन। मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा तुम्हें याद है हमने लास्ट मेहनत किसी बैच पे इतनी कब की है? तो मुझे कैजुअली बोल रहे सर आपने 10th पढ़ाई भी तो इतने सालों बाद है। तो मैंने कहा यार इस बार कुछ ज़्यादा ही कर लिया, मतलब मुझे लग रहा है हम मैराथन चक्के जा रहे हैं, मतलब पेपर 4 दिन बाद पेपर है, अभी भी बच्चे आ रहे हैं, मॉक्स हो रहे हैं, मतलब क्रेजीली। तो वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो इसलिए जब आप ज़्यादा मेहनत कर लो ना गाइस, इंपॉर्टेंट है। और ये एंग्जाइटी पता है किसको होती है? उसी को जो ज़्यादा मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करता ना उसको एंग्जाइटी भी नहीं होती है, बिकॉज उसको पता है यार मैंने कुछ। एंग्जाइटी कब आएगी? एंग्जाइटी क्या है पता है क्या है? इट्स अ डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस which you have from you, and and I would say a fear that what will happen when you're not able to reach that expectations. That's thing that causes us to be anxious. Uncertain future. What if I score only 80%? I've been targeting 95%. What if? What if? You know the best part is because it's only what if. It's not reality. और किसी को अगर एंग्जाइटी हो रही है तो मतलब तुम नॉर्मल हो। नहीं हो रही है तो भी नॉर्मल हो। ऐसा नहीं है मैं कि तुम कह रहे हो, तुम ये नहीं कह रहा तुम पागल हो, बट एंग्जाइटी होना नॉर्मल है बेटा। जैसे मैं तुम्हें कितना जिंदगी के मैं तुम्हें कितने ज्ञान दिए ना इस साल। दो कई बच्चे तो 2 साल, बट मुझे खुद बहुत एंग्जाइटी होती है कुछ चीज़ों को लेकर, बताऊंगा किसी और दिन। बट नॉर्मल है। बिल्कुल ठीक बात है। आई हैव गॉट एग्जाम हॉल में बहुत एंग्जाइटी होती है एंड देन ब्लैंक आउट हो गया है। ब्लैंक आउट इज नॉर्मल बेटा, यू हैव टू स्टार्ट। मैंने लास्ट में लिखा हुआ है एक दो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग, अगर पेपर में ब्लैक आउट हो रहा है ना, एज इन ब्लैक आउट लग रहा है कुछ समय, पेपर कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, पेपर ना दिखता है, अक्षर नहीं दिखते, मतलब यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट कि लिखा क्या हुआ है भाई इन द कॉन्टेक्स्ट के। जो जो प्रेशर ले लेते हैं बच्चे ज़्यादा। एंड जनरली मैंने देखा है, ये जो अपने आप पर कई बच्चों ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है ना, बहुत ओवर प्रेशर, मुझे 98 चाहिए सर। अरे यार इतना भी मतलब बेंच मार्क 98 चाहिए भाई। 98 का मतलब है तुम साला टोटल 10 नंबर कटवाना चाहते हो, और 5 नंबर मतलब ये सीबीएसई वाला 5 नंबर 10 नंबर की गेम में खेल रहा है। 10 यार 10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं यार, सब्जेक्टिव पेपर है। मतलब मैं नहीं कह रहा ड्रीम बिग ना करो तुम, मतलब तुम लोगों को अच्छे कॉलेज तक पहुंचाना मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। बट बट कि ओवर मत करो, ओवर मत, गरारी मत अड़ो। सर अच्छे बच्चा नाम नहीं ले रहा, सर फिजिक्स में 1 नंबर नहीं कटने दूंगा बोर्ड में। डेफिनेटली कटेगा भाई तेरा 1 नंबर, मैं आज लिख देता हूँ। अगर इस अप्रोच से जाओगे 1 नंबर नहीं कटने देना। मुझे अपना परफेक्ट एग्जाम लिखना है विद 100% फोकस, ये राइट अप्रोच है। 1 नंबर नहीं कटने दूंगा। अरे यार ये क्या तरीका है, 1 नंबर नहीं कटने दूंगा? तेरे हाथ में नहीं है पेपर का लेवल। अगर उसने ओके ले लो अंडे, हुआ था मॉक टेस्ट, दिया था मैंने चैलेंज, पेपर डिफिकल्ट भी नहीं था, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, हर बच्चे ने ही बोला। आए किसी के 80 आउट ऑफ 80? 74 वाली कट ऑफ 2 बच्चों की क्लियर होगी शायद, एक की या दो की, आई डोंट नो, उनको चलो क्रैश प्राइज भी मिलेगा। हुए? आए 80 आउट ऑफ 80? मैंने नहीं आने देने थे। अगर एग्जामिनर अच्छा है, इंटेलिजेंट है, उसकी गरारी अड़ गई, नहीं 80 इस बार नहीं जाने देता, 100 बड़ा 100 मैथ्स में नहीं आ सकते यार तुम्हारे, चांसेस डिफिकल्ट है। एग्जाम वाले दिन मेरे, कब तक तुम अपने डाउट्स भेजते रहो, मैं लास्ट में देखता हूँ, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? एंग्जाइटी वाला पॉइंट समझ आया? एग्जाम मैं सारे पॉइंट्स दोबारा देखता हूँ एक बार जो डाउट्स हैं। लास्ट मिनट रिवीजन कोई नहीं करेगा, मैं नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ, अवॉइड लास्ट मिनट रिवीजन बिफोर एंटरिंग। अगर जेनेसिस का कोई बच्चा तुम्हें दिख जाए, तुम तो करोगे तो तुमसे लड़ाई है। अगर तुम्हें कोई दिख जाए कि एग्जाम में घुसने से पहले ये किताबें पढ़ रहा है, मेरे को नाम बता देना उस बच्चे का पेपर के बाद।
कुछ नहीं पढ़ना लास्ट मिनट। लास्ट मिनट क्या करना, लंबी लंबी सांसें लेनी है, गाने सुनने हैं जो तुम्हारे फेवरेट है, चीप सॉन्ग्स नहीं सुनने लेकिन, ठीक है। सुबह उठ के रिवीजन करनी है भाई, रिवीजन कर ले भाई, 1-2 घंटे कर ले, बट पेपर से 2 घंटे पहले कुछ मत करियो। बट सुबह पेपर में बहुत टाइम है, ये रात को 8 घंटे सो के जाना पेपर देने, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरी पूरी रात पढ़ के ये तो हो गया तुम्हारा, आईसीएससी वालों बस कर दो अब। छुट्टियां हैं पेपरों में और टाइम था पेपर में, अभी ये ऑल नाइटर्स पुल करके पेपर देने नहीं जाना। पफ्फी फेस पफली आईज लेके तुम पेपर देने जाते हो यार, नंबर कट नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चों के बायो में 71 नंबर आए थे प्री बोर्ड में इस बार यार, 72 नंबर। पेपर टफ था माना, बट तब भी 4-5 नंबर और आ सकते थे लिटिल फ्लावर में इस बार। सोए उस पूरी रात सोओगे नहीं, टफ देखो, पूरी रात सो के बिना कम नींद के बाद पेपर दोगे, आसान पेपर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, टफ पेपर में बैंड बज जाता है, टफ पेपर में, क्योंकि तुम्हारा बेस्ट यहाँ से चाहिए। और एक तो पेपर तो टफ आएंगे आएंगे, मेरी 100% इस बार भविष्यवाणी है। 2 पेपर तो टफ बनाएगा बोर्ड एग्जाम। सीबीएसई में एक पेपर टफ आने वाला है बहुत, कोई ना कोई एक टफ आएगा अनएक्सपेक्टेड, और आईसीएसई में 2 पेपर टफ आएंगे। मैं प्रे कर रहा हूँ फिजिक्स टफ आ जाए। बट अगेन कई बच्चों को इस बात पे एंग्जाइटी हो रही है, इसमें एंग्जाइटी की क्या बात है, सबके लिए टफ आएगा, हम तो वेल प्रिपेयर्ड हैं भाई। ओके, तो नो नो लास्ट मिनट रिवीजन। और किस अगर देखो बेटा, अगर मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ये बात सही नहीं लग रही ना जो मैं बोल रहा हूँ, अभी भी तुम आराम से लीव कर दो मीटिंग, कोई फर्क नहीं है। डीप ब्रीदिंग बिफोर द राइटिंग स्टार्ट, थोड़ा सा ना एग्जाम से जस्ट नियर अबाउट टू स्टार्ट, कई बच्चे मैंने देखो ओम बनाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, वट एवर यू बिलीव इन। कई JMD लिख देते हैं, जय माता छोटा सा लिख देते हैं, कई जय बजरंग बली लिख देते हैं। दैट्स वेरी पावरफुल, वट एवर यू बिलीव इन, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर फेथ। तो थोड़ा ब्रीदिंग पे काम कर लो, थोड़ा सा एक ना एक ऐसा ठहराव। ये देखो हाथ देखो मेरा, ये हाथ देखो, तुम्हारा माइंड है मान लो, ये माइंड ऐसा होना चाहिए एग्जाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कईयों का ऐसा होता है, उसको उसको ऐसे करना है, और ऐसे करने का सिंपल तरीका है लाइक क्लोज योर आइज, और प्रॉब्ली इफ यू कैन ओपन योर आइज, यू कैन फोकस अपॉन योर पेंसिल। देखो आज सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल बेसिक। अगर तुम्हें लगेगा यार पेपर में से जस्ट पहले आंखें बंद करके लोग कहेंगे पागल हो गए, तो धर्मात्मा बन गई है या परमात्मा बन गई है, तो अगर कॉन्शियस हो गए तो पेंसिल को ना 2 मिनट देखना शुरू कर दो पेंसिल को, या इससे भी सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। कोई डॉट लगा लो टेबल पे ना, छोटा सा डॉट लगा लो, डॉट छोटा सा, पेंसिल से ना जिस टेबल पे पेपर लिखोगे ना उस पर डॉट लगा लो, और 2 मिनट ना उस डॉट पे कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस बन जाएगा, पूरा फोकस सेट हो जाएगा। दीज वर माई पॉइंट्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम नाउ रीडिंग द चैट बॉक्स नाउ, एंड आई ओपन द डाउट्स फॉर ऑल ऑफ यू। सर सुबह उठ के रिवीजन करनी है, बेटा रात को उठ के तो रिवीजन नहीं कर पाएगा, सुबह उठ के कर लियो, बट डिपेंड कर पेपर से पहले, डिपेंड करता है। बट मेरी अभी भी एडवाइस रहेगी भैया, तेरी 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए, 7 या 8 मिनिमम, 7 इज मिनिमम बिफोर द एग्जाम। इन अ सब्जेक्ट लाइक जो थोड़े रट्टे वाले हैं, मे बी यू कैन गिव अ क्विक रिविजन टू टफ थिंग्स 1-1.5 घंटा सुबह। बट इन सब्जेक्ट लाइक आई डोंट थिंक सो, इन अ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स मैथमेटिक्स you need a last minute revision. In a maybe subject like history, chemistry के कुछ chapters, biology, geography, you might need a revision. बट 7-8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है। एग्जाम वाले दिन कब तक रिवीजन करनी चाहिए, एग्जाम से 1.5 घंटा पहले आपकी रिवीजन बंद हो जानी चाहिए। सर एग्जाम हॉल में बहुत एंग्जाइटी होती है, देन ब्लैंक आउट हो गया, मैंने तुम्हें बताया एंग्जाइटी का सिंपल है, स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स, एंड यू गॉट टू हैव सेल्फ बिलीव बेटा। सर रीडिंग टाइम में कोई क्वेश्चन दिख जाता है जो नहीं आता, तो देन ओवरऑल कॉन्फिडेंस, बेटा मैंने पूरे सेशन में आज यही बताया कि एक क्वेश्चन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, 2 क्वेश्चन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, आपका फ्यूचर। आई एम नॉट एबल टू, नहीं नहीं, मैं किसी से इस मीटिंग के बाद मैं किसी से बात नहीं कर सकता भाई, मैं भी फैमिली वाला आदमी हूँ, तो मेरे भी नो डिनर टिल नाउ, ठीक है। तो तुम मेरे से मैसेज कर लेना अभी, मेरे को पहले डाउट्स आंसर करना, तुम मेरी साले डेटिंग लाइफ खराब करोगे। ओवरऑल बिल्कुल बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन से मेरे बच्चे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं आता नहीं आता, सारा फोकस होना चाहिए, जो आता है उसको मैक्सिमाइज करना है। ध्यान सुनना, ये मैं आज के बाद नहीं बताऊंगा, इस साल मतलब इस सेशन में बताऊंगा, 11 में बताऊंगा। जो आता है उसको मैक्सिमाइज करना, जो नहीं आता उसमें मिनिमम डैमेज करना, सिंपल।
जो आ गया, अगर हम जॉनथन की बात करें, एग्जाम्पल जॉनथन तेरा ले लूँ ना बेटा, तो तू मेरे को बहुत प्यार करता है ना, उसको 55 नंबर का मान लो 80 में से पूरा पेपर आता है, पूरा। तो जॉनथन के 55 नंबर पहले पक्के करने हैं इसको, और अगले 25 में से जितने खींच सकता है, 10 12 13 खींच दे, वो जॉनथन का कामयाबी का दिन है। उस 25 नंबरों के चक्रों में कि मेरे को 25 का नहीं आता, तो 55 में से भी 30 लाएगा अगर, तो टोटल नंबर बनेंगे 40। और अगर थोड़ा सा सेंसिबली से डीप ब्रेथ लेके चलने कि यार साहिल ने क्या सिखाया, साहिल सर ने 55 का आता है, इस 55 में से 55 नहीं छोड़ूंगा, उस 25 में से किसी तरीके, क्योंकि बोर्ड में नंबर मिलते हैं, स्टेप के भी मिल जाते हैं, लिखने के भी मिल जाते हैं, 10 भी ले जाऊंगा तो 65 का स्कोर हो गया। 65 तो मेरी जिंदगी में नहीं है 80 में से। दैट शुड बी द सेल्फ पेप टॉक, दैट्स कॉल्ड स्ट्रैटेजी। टेंशन को कैसे ओवरकम करना है भाई, ये मैं क्या बता रहा हूँ। टेंशन को ओवरकम करने के लिए बताता हूँ, रस्सी काट दो। टेंशन रस्सी में होती है ना। टेंशन को ओवरकम करने का सिंपल तरीका बता तो दिया भाई तेरे को। डीप ब्रीथ लो, टाइम से सो, फालतू मत सोचो, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उनको मत सोचा करो, रिश्तेदारों से दूर रहो, रिश्तेदारों को भटकने मत दो, किसी को भी किसी को भी घर नहीं आने देना जो नेगेटिव है थोड़े दिन के लिए। हाँ, तो मैं बिल्कुल, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका दिव्यांश। यू हैव सेट द बार टू हाई फॉर योर सेल्फ विच इज कॉजिंग फियर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, डोंट, मैंने तभी बोला डोंट सेट द बार टू हाई, योर बार शुड बी, आई रिपीट, व्हेन यू सी, कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एज अ मेंटर, आई थिंक आई हैव नेवर शोन यू दैट काइंड ऑफ साइड ऑफ मी। The only bar I have set for myself when I'm mentoring any batch or any number of batches is I will be 100% ईमानदार in giving them the direction and be with my students. रिजल्ट आएगा बहुत बढ़िया, किसी साल नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, अगले साल फिर आ जाएगा। अब ऑब्वियसली आपके लिए चीज़ वैलिड नहीं होगी कि आपकी 10वीं एक ही बार होनी होती है, ठीक है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, बट इतना बार हाई मत रखो कि परफॉर्मेंस के प्रेशर में आप प्रोसेस पे लूज कर दो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद लगे ये पढ़ा तो है बट वो प्रॉपर आंसर दिमाग में नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दूँ? बिल्कुल भी नहीं, उसको लास्ट में करो फ्रेश माइंड से। डेफिनेटली अगर कुछ भी क्लिक नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ लिख के आओ, कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब मोस्टली पेपर से ऑब्जेक्टिव आता है आपका। स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के कुछ नहीं आना। एक ऐसा पेपर जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें कभी भी कुछ नहीं छोड़ते, छोड़ना पाप है बेटा। ठीक है जी, क्लियर है? Anyone else who wants to come in Genesis mocks there are no silly mistakes, but in paper it might happen। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, क्योंकि जेनेसिस तुम्हारा घर है। इट्स लाइक अ वेरी कंफर्ट फीलिंग। Let's be honest, it's like your, I would say, happy place for most of you. I'm not saying for all of you, but for most of you it's very happy place, happy space, sorry, not place, happy space। You are in a comfort zone there, so वहाँ पे केयरलेस मिस्टेक नहीं होती ज़्यादा। केयरलेस मिस्टेक ऑलवेज हैपन्स इन हाई प्रेशर गेम, जहाँ पे आप यू स्टार्ट टू फील दैट इट्स डू और डाई। The moment you feel it's a do or die for me, just like Divyansh said, I have set the bar for me. So someone like Divyansh, for example, is giving a paper for physics, and Divyansh is very close to me also, and I know he's a very genius guy. I am expecting him to score 80. No doubt about it in physics. He also expects the same. But अब दिव्यांश अगर पेपर कर रहा है और उसको तीसरा एमसीक्यू पेपर का बहुत डिफिकल्ट लगा, इसको नहीं आ रहा, अब उस चक्कर में अगर दिव्यांश ये सोचे यार शिट यार इस, और वो 10वां क्वेश्चन करते हुए, 20वां क्वेश्चन करता हुआ तब भी तीसरे के बारे में सोचेगा, तो डेफिनेटली मैं लिख के देने को तैयार हूं वो और गलती करेगा। तीसरे को तभी वापस सोचेंगे जब तीसरे पे वापस जाएंगे, तब तीसरा हो भी सकता है। अगर मैं 17वां क्वेश्चन करते हुए, 21वां क्वेश्चन करते हुए तीसरे के बारे में सोचूंगा तो कुछ नहीं होगा, तीसरा के चक्कर में तीन और गलत हो जाएंगे। सो यही आपका डाउट था। सो इट विल ऑलवेज हैपन। सो एक मिनट सर, पेपर से पहले फिजिक्स की रिवीजन स्टेप वाइज कैसे करूँ, ये क्या बात हुई? पेपर से पहले फिजिक्स की स्टेप वाइज बेटा, पेपर से पहले रिवीजन अगर, मतलब पेपर से पहले, अच्छा ये मेरे से बाद में पूछना डाउट, ये लंबा है, इसको बहुत समझाना पड़ेगा मुझे। सर मैं जब पढ़ती हूँ तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, हूँ तो ऐसा लगता है ये तो इतनी बार कर लिया, ये तो मुझे आता है, बट फिर जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो वो नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ।
है सर, मैं जब पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है मुझे कितनी बार कर लिया। बेटा देखो, कुछ क्वेश्चन तो देखो होंगे ऐसे, तभी मैंने बोला यू हैव टू फोकस अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अपना सिलेबस फिनिश करके मैंने 8 तारीख डेडलाइन दी थी, बट मैक्सिमम 9 8 9 के बाद स्टार्ट फोकस अपॉन क्वेश्चन जो आपने जिनका एक्सपोजर कम है, जो थोड़े डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिनको आप, जो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके आपने कॉन्सेप्चुअली नॉलेज बहुत है, आपने बैक एक्सेस भी कर ली, बट शायद ओवरऑल उन क्वेश्चंस का उतना एक्सपोजर नहीं है। तो जब आपकी थरोली बुक हो गई है, बुक आपकी जो जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे सीबीएसई की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उनको तो मॉड्यूल भी मिला हुआ है, वो आईसीएसई की बुक कंसाइज वाली जब मेन बुक्स होगी, उसके बाद अपना 10 ईयर 5 साल के क्वेश्चंस कर लिए, अगर वो करने के बाद यू वांट टू एक्सप्लोर, देन यू कैन एक्सप्लोर, बट ओनली एक्सप्लोर व्हेन यू हैव डन दीज थिंग्स। ऑल्सो एक और चीज़, रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस आपको मतलब रिपीट मोड पे जा चुका होना चाहिए अभी तक। 10 घंटे की सेल्फ स्टडी या 8 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं, 8 घंटे तो मिनिमम है। 8 घंटे इज बेयर मिनिमम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सर हाउ टू प्रोडक्टिवली रिवाइज इंस्टेड ऑफ पैसिवली री रीडिंग द चैप्टर्स, ये अच्छा है यार। यार प्रोडक्टिवली रिवाइज का सिंपल सा फंडा है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना, तू एक पेज पे गया, ठीक है, तो आपने उस पेज के बारे में आपको पता है, आपने इस पेज को मोटा मोटा 2 मिनट में 1.5 मिनट में रीड किया मनप्रीत, और उसके बाद ना उसको मन आंखें बंद करके ना, मेरे बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताता हूँ, या तो उसको लिख ले, बट अगर तेरे को लिखने में भी बहुत टाइम वेस्ट हो, इतना टाइम नहीं है, तो अपना ना फ़ोन ले लो, पापा मम्मी का, अगर अपना है तो अपना ले लो। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आती है मेमोज की ना, एक वो उसमें ना उस पेज के बारे में जो तूने सीखा या जो तेरे को आता है, वो ना बोल दे, वॉइस नोट बना ले, और उस वॉइस नोट को सुन। और जब तू उस वॉइस नोट को सुनेगा, दिस अ वेरी क्रेजी स्ट्रैटेजी आई एम टेलिंग यू, जब आप उस वॉइस नोट को सुनोगे ना, तो आपको ना खुद से सुनने के बाद पता लग जाएगा कि आपको वो पेज कितना डेप्थ में आता है। अगर आपका बिल्कुल फ्लो में स्टोरी की फॉर्म में चीज़ निकल रही है ना, ठक 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 ठक, तो वो पेज आपको आता है। अगर ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो उसको पेज को एक बार खुद थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इससे प्रोडक्टिवली काफ़ी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। Lastly, like in subject like maths, I have fractured enough, but never scored above 75. Okay, so how can I do it in boards? So miracle would happen there, or else in miracles only happen with the kids who believe in the miracles. अगर तू बिलीव ही कर रहा है मिराकल नहीं होगा, तो मिराकल होगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरा जिंदगी में, मैं अपना छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बिकॉज आई वाज अ वेरी एवरेज किड। मेरा जिंदगी में स्कोर 60% किसी भी एग्जाम में नहीं आया था, 60 भी बहुत बड़ी बात है, बट एक ही बार मेरा जिंदगी में स्कोर आया था 10th बोर्ड्स में 85.2, तब 85.2 वाज यूज्ड टू बी डिसेंट स्कोर 20 years बैक। तो मिराकल ही मानता था मैं उसको, बट मेरे को लगता था हो जाएगा। तो तेरा 80 आएगा, देख लियो इस बार मैथ्स में। डोंट, अगेन यू गोइंग विद आरुष, यू आर गोइंग विद प्री कंसीव नोशन, मैंने बहुत क्लियर बोला, डोंट, तेरा मैथ्स में आज तक 75 से ऊपर नहीं आया, तो यू हैव सेट अप नोशन विद फॉर योर सेल्फ, मेरा नहीं आएगा, मेरा नहीं आएगा, आज तक नहीं आया तो कैसे आएगा। इट्स अ न्यू गेम, इट्स अ न्यू मैच, इट्स अ बेटर आरुष, it's an Arush which has failed more times in mathematics than other. Failure means you're with your own standards. It's a more sensible Arush sitting for the board exam with a more clear focused and a more trust on himself that I'm not going to make mistake. क्यों नहीं आएगा 80 out of 80? Again 80 out of 80 की करारी भी नहीं रखनी है, या 8 करारी नहीं रखनी है, बेस्ट पेपर लिखना है, बेस्ट पेपर, दैट शुड बी द गोल। पीवाई क्यूज कितनी हेल्प करेंगे? पीवाई क्यूज नाम की बीमारी बहुत गंदी है। पीवाई क्यू बीमारी का इलाज बहुत सिंपल है। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बीमारी का इलाज बहुत सिंपल है। पीवाई क्यूज तभी करो जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट और बुक थरो है। अगर आपके कॉन्सेप्ट थरो हैं, आपकी बुक थरो है, तो पीवाई क्यूज डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट थरो नहीं है, आपकी बुक थरो नहीं है, तो पीवाई क्यू बोल लो, डीवाई क्यू बोल लो, पीवाई, इसका कोई भी नाम दे लो, कोई हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि आपका नुकसान करेंगे। क्योंकि आप 5 साल के पेपर करके जाओगे, आपको लगेगा पेपर वहाँ से आएगा, हो भी सकता है 2 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, आप रट्टे मार के जाओगे, आप कॉन्सेप्चुअली आपकी बुक्स तैयार नहीं है, आपका बैंड बजना, रिटर्न में दे रहा हूँ, रिटर्न में ब्लैंक पेपर पे बैंड बजेगा ही बजेगा। जिस इंसान को कॉन्सेप्ट आते हैं, फंडामेंटल नॉलेज है, आंसर फ्रेमिंग आती है, और स्ट्रैटेजी क्लियर है, वो पीवाई क्यू करे बिना भी 100/100 ला सकता है। डोंट, पीवाई क्यूज आर टू बी, हैज टू, शुड बी डन, बट एट द राइट टाइम। अभी अगर आपकी पूरी बुक तैयार है हर सब्जेक्ट की, देन यू कैन गो फॉर द पीवाई क्यूज। और ताले तुम मेरा डिवोर्स कराओगे? एनीवन एल्स? गाइस एनीथिंग एल्स? नो नो, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम ऑल योर्स। आज मैं टाइम निकाल के बैठा, तभी कल मैंने सेशन कैंसिल कर दिया था, बिकॉज मुझे पता था कल मेरे को टाइम कम था मेरे पास। आई आई आज, आई आज स्कीम है, कुछ स्कीम पाई हुई है मैंने आज।
Anyone else, guys? Anyone else? Come on. You can share your doubts. Even if you don't want to type it, you can raise your hand. I can allow you to speak up. So I think if there's nothing to speak up, I hope you liked it and you love me a lot, and I know that I love you a lot, guys. धीरे धीरे we are about to reach सर एसएसटी में लाख करता हूँ, बट साइंस एंड मैथ्स ठीक है बेटा, एसएसटी तो पढ़नी पड़ेगी बेटा, कोई उसका कोई शॉर्टकट नहीं है अनफॉर्चुनेटली बेटा। इंटरेस्ट बना सकता है तो बना ले, बट वो टाइम निकल गया इंटरेस्ट बनाने का। अगले अगर तो ह्यूमैनिटीज़ लेने का प्लान है अगले साल, फिर तो इंटरेस्ट बनाने का टाइम है तेरे पास। बट अगर ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेनी, साइंस की स्ट्रीम लेनी है, तो बेटा एसएसटी को मैं तो पता सिंपल सा फंडा बोलता हूँ बच्चों को, जैसे बड़े कि यार अगर किसी सब्जेक्ट ने हमारे पूरी ज़िंदगी हमें तंग करा है ना, तो हमें पता है हमने उसको छोड़ देना है अगले साल। अगले साल मतलब अगले महीने छोड़ देना है। तो अब डिपेंड ये करता है तुम्हारा माइंडसेट क्या है। तुम ये सोच के छोड़ते हो उसको कि मेरे से पूरी ज़िंदगी नहीं हुआ, तो प्लीज़ मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ कि ये तूने मुझे पूरी ज़िंदगी तंग किया, लेकिन फाइनल में आके मैंने तेरी धज्जियां उड़ा दी, फिर भी मैं तुझे छोड़ता हूँ। दोनों चीज़ें सेम है, थोड़ा सा माइंडसेट का फ़र्क है। कि तेरे को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैंने तेरे को कॉन्कर कर लिया, पूरी ज़िंदगी मेरे को तंग किया एसएसटी ने, जैसे मेरे लिए बायोलॉजी थी ये, पूरी ज़िंदगी मुझे तंग किया, रुलाया। प्रांजल शुड से दिस टू मैथमेटिक्स, लेकिन लास्ट में आके आई कॉन्कर्ड यू, आई स्कोर्ड वेल। जो मेरा ड्रीम था, मैंने उस स्कोर को अचीव किया। फिर भी मैं तुझे चूज नहीं करूंगी, को यू ब्लडी रिजेक्टेड। I am not going to choose you in April. If you work with that small shift in the mindset, magic starts to happen in life. खले तुम्हारे डाउट ही खत्म नहीं हो रहे, फीस बढ़ानी पड़ेगी अगले सेशन में, तो सारी स्कॉलरशिप पे कैंसिल करता हूँ यार ये। डैम सर आई एम ऑन इट। अच्छा थैंक यू बेटा, थैंक यू। मुझे लगा तू मुझे गाली गुली दे रहा है। मैथ्स में फॉर्मूला आने के बावजूद भी सिली मिस्टेक्स होती हैं बेटा, तेरा ये वर्ड ही गलत है। सिली तो वर्ड ही नहीं होना चाहिए। तू जेनेसिस का स्टूडेंट है, अगर तू मेरे से पढ़ता है तो सिली की जगह तू जब तक ब्लंडर नहीं लिखेगा यहाँ पे, तब तक तू सिली नहीं हिली है। सिली मिस्टेक there is nothing called silly mistakes. For all the people who I love you guys so much, there's nothing called silly mistakes, because ये बॉयज़ की ना बड़ी कैजुअल सी बात है। बॉयज़ को बड़ा प्राउड प्राइड फील होता है, यार मेरे को आता सब है बट मैं सिली मिस्टेक्स कर देता हूँ। भाई सिली तू जब तक बोलेगा तो ये बॉयज़ में होता है, मेरे में भी था। आता सब था भाई को, नंबर 8 कट गए क्योंकि सिली मिस्टेक्स हो गई। भैया कौन कह रहा है 8 कटवाने की, लादे पूरे औकात है तो। कमिंग बैक टू योर डाउट बेटा, तू जब तक ये नहीं सोचेगा ना मेरे बच्चा कि ये ब्लंडर मिस्टेक्स है, ब्लंडर वर्ड में ना बहुत दम है। जब हम ब्लंडर की बात करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कि इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें। तो जब हम ब्लंडर, मैं आज पेपर में आई एम नॉट गोइंग टू मेक, इफ आई टॉक टू मी लाइक दिस बिफोर द एग्जाम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फ्रॉम आई अहान जोशी promise to myself that during this mathematics exam of 3 hours of board exam, I am not going to make any blunder mistakes. I will attempt the exam with complete focus and dedication for 10,800 seconds, and I'll win. गलती होगी नहीं बेटा। हाँ तेरे लिए बोला मैंने, तेरी ये स्पीच होनी चाहिए अपने आप से एग्जाम से पहले। जब तू बैठेगा ना एग्जामिनेशन हॉल में, उस टाइम पे तू इधर उधर देखेगा, उधर उधर देखना नहीं है। उस टाइम तूने अपने आप से ये बात करनी है, आय अहान जोशी। लेकिन लाउडली मत बोल लग जाना, वहां सब खड़े हो जाएंगे ये क्या हो गया। मन में बोला, मन में, मतलब अब देखो मन में भी बोल के एक पैशन आ जाता है। आय अहान जोशी प्रॉमिस माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 10,800 सेकेंड्स, 3 घंटे की बात कर रहा हूँ सालों, कई कैलकुलेशन कैलकुलेशन में पड़ गए। ये क्या बोल रहा है आदमी है। विल नॉट मेक एनी ब्लंडर मिस्टेक, दिस इज माई डे, आई आई रिफ्यूज टू गिव अप। यार ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, पेप टॉक से ऊपर कोई चीज़ नहीं है भाई। मेरी फोटो ले जाना साथ, वैसे ही पुश हो जाओगे। गाइस एनीथिंग एल्स? इजाज़त है गरीब आदमी को खाना खाने की अब? नो नो, ऑन अ सीरियस नोट, आई हैव टू टेक माय सन आउट फॉर, उसको मैंने आज प्रॉमिस किया था, आई टेक यू आउट। माय वाइफ इज गॉन फॉर सम गर्ल्स नाइट आउट। माय डॉटर इज बीन, आई हैव पुट माय डॉटर टू स्लीप। आई हैव टू टेक माय सन आउट फॉर कुछ कुछ ऐसे गेड़ी गुड़ी। तो ही इज नॉकिंग, आ रहा हूँ 2 मिनट दे दे। ही इज नॉकिंग ऑन माय वो कि पापा चलो चलो चलो। सो अब तो दूसरों के बच्चों की संभाल ली जिम्मेवारी अपने संभाल लूंगा इस।
चलो गाइज, ओके, सी यू सून इन द क्लासेस, लव यू, गॉड ब्लेस यू, मिस यू, बाय बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। यार बाय तो कर दो। बाय सर, थैंक यू सर। बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।